Yeah. There to attend this. Anyways, some lot of preparations going on around the mandir. Mandir did not used to be so charmful earlier because of this lightning effects and many things that has been done. There is a re-inauguration of Lord Jagannath Puri scheduled on January 17th this year, this month in fact. And for that only there is a lot of preparation going on. दिन में मैं आया था तो ये पेंटिंग्स वगैरह भी नहीं होके रखा था. अभी सिंह द्वार के सामने हूँ मैं और सिंह द्वार के सामने ये पेंटिंग्स वगैरह नहीं था. अभी अपडेटेड है. होपफुली कल परसों में जगन्नाथ जी का श्राइन को भी पेंट कर देंगे. एंड ऑल अराउंड द टेम्पल यू कैन सी लॉट ऑफ लाइटनिंग इफेक्ट्स हैज़ बिन डन. एंड mainly lot of space has been created around the temple for the parikrama purpose. All the buildings that used to be what you call encroachment sort of buildings has been removed from the area, and all that you can see is lots of space around the premise of Lord Jagannath. I'll just take you around. Yeah, so from here also the view of temple is coming on very great. Of work is going on. Right. This such splendid view of Jagannath I have not seen earlier in my life, and this is the first time in the history of Lord Jagannath that such a length of work has been done. Hopefully there will be a lot of crowd. From here you can see the view more clear and from a very near close proximity. The weather is very cool and yeah, this is the view. So those who have come to those who have already visited Jagannath, this would be a new experience for them to visit the temple in the new fashion. And those who have not visited yet in their life, they are really missing out on something extraordinary that the temples of among the temples of India that can provide you both in terms of spiritual experience and also in terms of the magnificent artwork. I'll try to get some pictures from this location. It's looking nice.
When the complete construction will get accomplished, at that moment the views that will be on air on TV channels and medias. So from Singhdwar we are moving towards Bedi Hanuman, but I don't know if I'll reach till there or not. But I'll just show you all a different corner of the mandir. So day in day out work is happening here. Lot of pressure going on everywhere. You can see the construction infrastructure is going on. Earlier at this place it used to be a crossroad junction and street vendors around the streets. चारों तरफ से रोड पे लोग नज़र आते थे यहाँ पे, जहाँ पे अभी पूरा साफ सफाई दिख रहा है. और यहाँ पे इंक्रोचमेंट किए हुए जैसे घर थे पुराने सब, जैसे बैकग्राउंड में आप देख रहे हो इस टाइप के, ऐसे हुआ करता था. बट राइट नाउ अराउंड आई डोंट नो हाउ मच आई शुड टेक इट, अराउंड 50 meter to 100 meter space around the temple has been vacated for the purpose of parikrama coming up. And I'll tell you guys, if you guys have not visited Jagannath, then once in a lifetime you should definitely come here. I do come here very often because I resonate with the energy of this place, and because of which something drags me again and again and pulls me, while earlier all these spaces was covered with So with my other hand I am taking pictures of from the other phone. And see, I have other phone also. I am taking pictures. भरा हुआ प्लेस है. तो जगन्नाथ जी के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है, और जिनको नहीं पता तो फिर वो पता करो, ठीक है. इनसे आगे ना मैं एक टेंपल आप लोगों को दिखाऊंगा, बेडी हनुमान का टेंपल, और हनुमान जी का दर्शन कराने के बाद फिर मैं उसका थोड़ा सा स्टोरीज़ भी आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है. यहाँ से देखो, तो ये सारे जो गार्डन्स वगैरह है, पहले यहाँ पे इंक्रोचमेंट होता था शॉप्स का, घरों का. अभी ये सब हटा दिया है, तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा हो गया है. एंड ऑल दिस वर्क इज़ गोइंग ऑन. सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं डे इन डे आउट. भैया 17 तक कंप्लीट हो जाएगा? आप लोग पूरा रात दिन लगे हुए हैं. 17 तो डेडलाइन है ना. मोटा मोटी तो पहले से व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ गया है. तो ये 17 का डेट कब डिसाइड हुआ? मैं तो पूरी आया ना, तब मेरे को पता चला कि 17 को कर रहा है. हम लोग को तो सिर्फ 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का ही पता था. ये डेट डिसाइड किया वो कितना दिन हुआ? ऐसा लगता है कंपटीशन में ये डेट डाल दिया है, तो वहाँ से पहले यहाँ का हो जाए, है ना. तो आप लोग के ऊपर भी प्रेशर है काम का. हाँ, डे इन डे नाइट जब भी आओ देखते हैं आप लोग लगे रहते काम में.
हाँ, ये द्वार से जो कि प्रमुख द्वार है, मेन एंट्रेंस गेट है, वहीं से दिखता था। स्ट्रीट वेंडर ये सब ने कवर अप करके रखा हुआ था। तो अभी आपका ये है, और ये काफ़ी रेयर हनुमान जी का मंदिर, आप लोग दर्शन कर लो। बेडी हनुमान जी, जगन्नाथ जी से पंडित जी बैठे हुए हैं। ऐसे दिन का सारा पूजा सब हो गया है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान। ओम सुत हनुमान जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, राम जय श्री, जय श्री, जय श्री, जय श्री। तो हनुमान जी, बेडी हनुमान का ये है कहानी कि जब पूरी जगन्नाथ जी का मंदिर का स्थापना हुआ था, समवेयर अराउंड आज से 1200 साल पहले या उससे भी पहले, आई डोंट नो, 2000 साल। तो क्या था ना कि अभी के जैसा टाइम नहीं था। जैसे जब उस टाइम क्या होता था कि नया नया टेम्पल और जगन्नाथ जी पूरा जागृत अवस्था में। मैं कहीं पहले बैठ जाता हूँ थोड़ा सा, व्यूअर्स वगैरह आ रहे हैं अभी भी। हाँ, तो मैं कहीं बैठ के कर देता हूँ आपको। हर जगह पूरी का आपको ये जगन्नाथ जी का इसमें ना कहीं कल की अवतार का आपको फ़ोटोज़ मिलेगा। जैसे ये जो द्वार है, यहाँ पे कल की अवतार का 2 चिन्ह रखा गया है, एक काला घोड़ा में और एक सफ़ेद घोड़ा में, दोनों कल की अवतार का ही है ना। तो सबको इंतज़ार है कल की जी का लैंडिंग का कब होगा। और अयोध्या का तो ओपनिंग आप लोग को देखने को मिलेगा ही सारे मीडिया से, बट उससे पहले 5 ऐसा है ना कि जितना भी फ़ोटो लो मन भरता नहीं। एक तो यहाँ का प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा डिवाइन है, और ऊपर से जो सजावट वगैरह करके रखा है बहुत ही ज़्यादा जो है ना मनमोहक, दिल को छूने वाला है। ये आप लोग को इतना दर्शन करने को मिल रहा है, यही आप लोग का एक नसीब कह लीजिए जो भी देख रहा है। और जो लोग यहाँ आ पाए उनका तो खैर बात ही अगर। तो ऐसा है कि जब जगन्नाथ जी का स्थापना किया गया था ना, तो ऐसा मंदिर हिस्ट्री में पहले कभी भी बना नहीं था। ठीक है, फर्स्ट टाइम इतना बड़ा बना। और जगह का जैसे नाम आप पूरी रखा गया है ना, तो सारी चीज़ तीर्थ धाम का पूर्ति होने वाला जगह एक ही जगह में, जहाँ पे सारे तीर्थ धाम का समावेश हो, पूर्ति हो, तो ऐसा जगह का नाम रखा गया पुरी। और इसका अलग दूसरा नाम है श्री क्षेत्र धाम। ठीक है ना, उड़िया में श्री क्षेत्र बोलते हैं, बात वही है। श्री क्षेत्र धाम इसको जो नाम रखा गया है, तो यानी कि आपका विष्णु लोक में जो विष्णु जी का जो वास है, विष्णु जी का जैसे जो एक सिस्टम है, उसी का रेप्लिका है ये, उसी का रेप्लिकेट है। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद आपको वो सारा चीज़ अनुभव आप कर सकते हो जो कि शायद वैकुंठ लोक में उसी अवस्था में हो। और जगन्नाथ जी खुद ही आपका कलयुग का देव है, जागृत अवस्था में। और उनका जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है लकड़ का, वो हर 12 साल में चेंज हो जाता है। उसका भी अपना एक सिस्टम है, प्रोसेस है, कौन सा पेड़ का लकड़ को इस्तेमाल करके बनाया जाए, है ना। वो लकड़ या तो नीम का होना चाहिए या पीपल का होना चाहिए, ऐसे 2-3 वृक्ष है जिसका होना चाहिए। और जिस वृक्ष को काटा जाए उसमें शंख का निशान होना चाहिए, गदा का निशान होना चाहिए, चक्र का निशान होना चाहिए। उस पेड़ में
सांप का बिल होना चाहिए, नदी में एक तालाब होना चाहिए और पास में एक मंदिर होना चाहिए। तो ये सारा कंडीशन जब मीट होता है तभी उस पेड़ के लक्कड़ से जगन्नाथ जी का मूर्ति बनाया जाता है और हर 12 साल में उसको चेंज कर दिया जाता है। पर एक चीज़ जो चेंज नहीं हुआ है ये इतने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के अंदर भी, वो ये है कि जगन्नाथ जी के अंदर एक ब्रह्म पदार्थ रखा जाता है। वो ब्रह्म पदार्थ क्या है किसी ने आज तक देखा नहीं, किसी ने उसको आज तक रिकॉर्ड नहीं किया, और जिस किसी ने भी देखा सो कॉल्ड देखने का इच्छा से, तो वो जो है ना उनका डेथ हो गया। तो जो ब्रह्म पदार्थ है तो माइथोलॉजी के हिसाब से कृष्ण जी का जब देहांत हुआ, डेथ हुआ, तो उनका अंतिम संस्कार के बाद भी उनका दिल जो है, हृदय है ना, वो ख़त्म नहीं हुआ और वो एक ब्रह्म पदार्थ में कन्वर्ट हो गया। और वही चीज़ जो है ना आज तक इस मंदिर में, इस टेम्पल में रखा जाता है। पहले उसको नील माधव के रूप में पूजा जाता था और आदिवासी लोग पूजते थे, और आदिवासी लोग से वो चीज़ को यहाँ का जो पुरी के जो राजा है उन्होंने लेके आए अपने पब्लिक के, है ना, अपने दुनिया में किसी भी गॉड का, किसी भी रिलीजन में ऐसा अजीब और अटपटा टाइप का मूर्ति आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे कि प्राइम गॉड गॉडेसेस का ना हाथ है ना पैर है, ठीक है ना, वो हैंडीकैप जैसा ऐसा है। तो ये भी इसी टाइप का एक लीला ही कह लीजिए कि उसमें ऐसा था कि राजा ने मंदिर बनाने का संकल्प तो किया कि करूँगा ये सब, बैठने को मिलता तो मैं थोड़ा जगह देख रहा हूँ। उसने संकल्प लेके बनाने का कोशिश तो किया पर उससे बन नहीं पा रहा था। तो राजा ने अनाउंस किया कि कोई अगर इसको कंप्लीट करेगा तो मैं उसको अच्छा इनाम दूंगा, कोई स्कल्पचर हो, कोई आर्किटेक्ट हो, कोई इंजीनियर हो, ऐसा। तो बहुत लोग आए, कोई कर नहीं पाया। फाइनली एक बूढ़ा सा आदमी आया। तो राजा बोला कि तुम क्या कर पाएगा, इतने बड़े बड़े जवान लोग मना कर दिए। तो बोला कि मैं कर दूंगा पर मेरा एक शर्त है। शर्त ये है कि मुझे कंस्ट्रक्शन करते वक्त, ठीक है ना, मूर्तियों का कंस्ट्रक्शन करते वक्त, टेंपल का कंस्ट्रक्शन करते वक्त कोई भी बंदा मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है, और कोई भी मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं अपनी स्पीड से इसको इतना दिन में कंप्लीट कर दूंगा, 3 वीक्स 4 वीक्स जितना उन्होंने टाइम दिया, मैं उतना टाइम में कंप्लीट कर दूंगा। कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा और मैं अपने हिसाब से करता रहूँगा। खाना पीने का सामान कुछ भेजना है आप लोग भेजते रहिएगा और मैं ये कंप्लीट कर दूंगा डेडलाइन तक। पर क्या हुआ कि एक स्पीड से काम चल रहा था, छेना हथौड़े का ऐसा आवाज़ आते रहता था। एक सर्टेन टाइम आया जब छेना हथौड़ा का आवाज़ आना बंद हो गया। तो जो महारानी थी, राजा का पत्नी, उसको थोड़ा सा वो हो गया कि कोई बूढ़ा आदमी मेहनत करते करते, मूर्ति बनाते बनाते कहीं मर मुर ना गया हो अंदर, है ना, कहीं फेंट ना हो गया हो, तो एक बार दरवाज़ा खोल के देख लेते क्या है। और शर्त ये था कि अगर मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब अगर करेगा कोई तो मैं जितना भी, जिस भी कंडीशन में मूर्ति बनाया है मैं उतना ही छोड़ के चला जाऊंगा और वही फाइनल मूर्ति होगा। तो डिस्टर्ब तो कर दिया। जैसे डिस्टर्ब किया तो अंदर देखा तो कोई नहीं मिला। विश्वकर्मा अपना बोर्डिंग पास लेके वहाँ से गायब हो गए, है ना, उनका टारगेट कंप्लीट हो गया और रह गया आधा अधूरा, नौना पौना मूर्तियाँ सब रह गया, ठीक है, जिसमें बलभद्र, सुभद्रा। और क्या हुआ, अब यहाँ पे जो पास में समंदर है, पूरी बीच में ओशन है ना, तो यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल का जो ओशन है, समंदर है, समंदर को भी लालसा होता था कि दर्शन करने के लिए तो शहर में वाटर लेवल राइज हो जाता था। तो शहर में वाटर कुछ ना जाए मेरा दर्शन के लिए, आप इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ठीक है। तो हनुमान जी ने बोला हाँ ठीक है मैं कर लूँगा, कोई बात नहीं। और हनुमान जी बैठ गए बाहर, जहाँ पे अभी आपका ये जैसे ये है, ठीक है।
पर ओवर द टाइम क्या हुआ, अब हनुमान जी को खुद मन करने लगा कि वो जाके जगन्नाथ जी का दर्शन करें, और वो टेम्पटेशन इतना होने लगा उनको कि वो बार बार जाते थे, दर्शन करने आते थे। ऐसे ही एक टाइम में मौका मिल के समंदर को फिर पता चला कि हनुमान जी तो खुद ही दर्शन करने के लिए अंदर चले जाते हैं, तो मौका लगा कि वो भी फिर से शहर में घुस गए दर्शन के लिए जगन्नाथ जी का। जब वो एंटर कर गए तो सी लेवल तो बढ़ गया ना, शहर में घुस गया पानी, तो फिर से सब जगह सिस्टम ख़राब हो गया, है ना, हड़कम मच गया। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि हनुमान जी, आपका तो ड्यूटी दिया गया था कि आप समंदर को अंदर आने नहीं देंगे और आप है ना वॉच करेंगे, पर आप खुद ही जो है ना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऐसा करेंगे तो कैसा होगा। तो एज अ पनिशमेंट जगन्नाथ जी ने क्या किया, उनको यहाँ पे इस टेम्पल में जो अभी मैंने आपको दर्शन कराया, उस टेम्पल में ले जाके हनुमान जी को बांध दिया, ठीक है, बेड़ियों से, जंजीर से बांध दिया और बोला कि आप यहीं रहो और आपका काम ये है कि आप बैठ के वॉच करेंगे कि समंदर कभी यहाँ से एंटर ना करें। तो तभी से इनका नाम बेड़ी हनुमान ऐसा पड़ गया, और इनका मेन एजेंडा ही यही है कि इनको ये देखना है कि ओशन कभी अंदर ना आए, ठीक है। पर कलयुग के अंत में देखिए, ये मंदिर इसलिए भी स्पेशल है ना कि जब तक जगन्नाथ जी का दुकान चल रहा है, ठीक है, तब तक कलयुग बचा हुआ है। जिस दिन जगन्नाथ जी अपना दुकान बंद करके चले गए, वाइंड अप कर लिया, उस दिन आप समझ लो कलयुग भी वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा मैट्रिक है कि जब तक जगन्नाथ जी का पूजा हो रहा है, भोग लग रहा है, ऊपर ध्वजा है, आई डोंट नो, आप जूम करूँगा दिखेगा, ध्वजा लहरा रहा है, रोज़ ध्वजा चेंज होता है, ऐसा कोई दिन नहीं है, बारिश हो, सर्दी हो, ठंड हो, जब भी हो, दिन में ध्वजा चेंज होता है। कल में आया था ध्वजा का रंग अलग था, पीला था, आज लाल है, ठीक है। तो ये डेली का प्रोसेस है, यहाँ पे होना है, और रोज़ भोग लगता है। जगन्नाथ जी खाने का इतना शौकीन है कि दिन में 4-5 बार तो खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, क्या क्या अपने, है ना। और 56 भोग लगता है, उनको जो भोग चढ़ता है तो वही फिर महाप्रसाद बन जाता है ना। तो लास्ट कपल ऑफ वीक से तो अब मैं 2 बार मेरे को महाभोग एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, और बहुत टेस्टी होता है महाभोग, महाप्रसाद, ठीक है। आप लोग ने अगर खाया है तो बताइए कमेंट्स में कि यस हमने भी टेस्ट किया है, नहीं तो लाइफ में एक बार टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। और कहा जाता है माँ अन्नपूर्णा जो कि लक्ष्मी है, ठीक है ना, तो उनका जो एक किचन है, किचन एरिया, वहीं पे बनता है खाना, और वो जो प्रसाद के रूप में भगवान का जब चढ़ता है ना, तो भगवान को भोग लगने के बाद फिर पब्लिक को जाता है, पर फ्री ऑफ कि पुरी के अंदर मंदिर के टेम्परीस से लेकर सब कोई चोर है, ठीक है ना, चोर चमार से भरा हुआ है यहाँ पे। ऑनेस्ट पीपल आपको यहाँ पे कम मिलेगा, और मर्सिनरी, है ना, पैसे में बिकने वाले लोग आपको यहाँ ज़्यादा मिलेगा, चाहे मंदिर के अंदर हो चाहे बाहर हो, चाहे आपका महाप्रसाद खाना हो या कुछ भी करना हो, ठीक है ना, एवरीथिंग मीन्स कैश। पुरी में आना है तो अब आपके खर्च करने के स्पेंडिंग के हिसाब से, ठीक है ना, है। तो ये बात है, ठीक है। और जैसे हर युग में एक सतयुग का विष्णु बद्रीनाथ, त्रेता युग का विष्णु राम, द्वापर युग का विष्णु कृष्ण, और कलयुग का विष्णु जगन्नाथ, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपका ये कलयुग का लाइव गॉड है एक तरीके से। तो ये मंदिर एक तरीके से एक वो, इट्स लाइक यू नो सिंबल। आज वाला आपका वीडियो में मैंने जो बताया था, ऑडियो थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा था, आई डोंट नो।
आज कैसा है ऑडियो? कैन एनीवन कंफर्म मी? आज का ऑडियो ठीक है या आज भी थोड़ा दिक्कत है आप लोगों को सुनने में? जो कोई भी लाइव है एक बार बता दो, मैं स्क्रीन की तरफ देख नहीं रहा हूँ एक बार। आज का ऑडियो ठीक है या ब्रेक वेक हो रहा है कुछ आवाज़ सुनने में आप लोग? सिग्नल का भी इशू रहता है हमेशा पूरी की तरफ। तो जो पंडित जी से मैं जो ना, पंडित भी कहना छोटा मोटा है, इट्स लाइक अ गुरु लेवल सॉर्ट ऑफ पर्सन। तो उनसे जो मैं मिला तो उन्होंने बोला, वी हैड अ लॉन्ग चैट, लॉन्ग डिस्कशन विद दैट पर्सन। और व्हाट ही सेड, यू नो दैट लोग कलयुग को अभी तक समझे नहीं है, ठीक है। कलयुग को लोग समझे नहीं है। कलयुग को लोग कल के अवतार के रूप में समझते हैं, बट कलयुग मतलब वो नहीं है। कली युग यानी कि आपका कलयुग इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, ठीक है। कलयुग इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, वन इज कल एंड अनदर इज की। सो कल एज पर हिम मीन्स मशीन, यानी कि मशीन का युग, ठीक है। एंड की मीन्स द की, चाबी। तो मशीन को चलाने वाला जो एक डिवाइन पावर है, ठीक है, दैट पर्सन इज कल्कि एज पर द गुरुजी दैट आई मेट, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि कल्कि का मतलब लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है। कल्कि मीन्स द मॉडर्न मशीनरी गैजेट्स, और उसको एक्टिवेट करने का चाबी या उसको कंट्रोल करने का चाबी, दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड कल्कि, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बोला कि अब जो वॉर होगा वो हैंड वॉर वगैरह होने का ज़माना चला गया। कलयुग का जो भी वॉर होगा वो मशीन युद्ध ही होगा, यानी कि मिसाइल्स, रॉकेट्स, लॉन्चर्स, बॉम्ब्स। यूक्रेन, इजराइल, इंडिया तो आएगा ही, इंडिया कैसे बच जाएगा, सबसे पंगा ले रहा है आजकल, ठीक है। तो आपको दिखेगा 2024 में भी 2-3 नए कंट्रीज़ का वॉर आपको देखने को मिलेगा। सो एज पर हिम, उन्होंने कहा कि महाभारत का 18 दिन का युद्ध जो है ना होना था, पर 17.5 दिन में युद्ध को ख़त्म कर दिया और लास्ट का 12 घंटे का युद्ध रह गया। और उस टाइम के लोगों को जो युद्ध करने का इच्छा था ना, वो ख़त्म नहीं हुआ था, ठीक है। उनको और युद्ध करने का मन था। तो ऐसे में all these people have taken bond on earth again in some form or the other, और वो लोग युद्ध का जो है ना अपना अधूरी इच्छा को पूरा करेंगे। लाइक सम पीपल ही डिकोडेड एंड सेड कि यूएस में कोई सुपर पावर पोजीशन में दुर्योधन हैज़ टेकन बर्थ। इवन रशिया का बंदा कोई महाभारत का ही है। नरेंद्र मोदी के बारे में भी बोला, वो भी कोई ऐसा महाभारत का ये कैरेक्टर है, क्योंकि वो उड़िया में बोला, ठीक है। तो मेरे को इतना इसलिए समझ में नहीं आ रहा, उड़िया में उन्होंने बोला था, जो समझ में आया मैंने बोला। और नवीन पटनायक जो कि सीएम है उड़ीसा का, उन्होंने बोला कि वो श्रीखंडी है महाभारत का, ठीक है। तो ये जितने भी लोग हैं वो सब अभी कलयुग में मौजूद हैं। एंड ये लोग का जो अधूरी इच्छा है, जो कीड़ा है लड़ाई लड़ने का, युद्ध करने का, ये इसको ख़त्म करने के लिए दोबारा ये लोग दोबारा एक अंतिम युद्ध करेगा। तो महाभारत का लेवल का 12 घंटे का युद्ध जो होगा कलयुग में, तो वो जब होगा तो हम लोग तो खैर झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप समझ लो कि वो लोग का जो इतने जन्मों का, इतने इयर्स ऑफ पेशेंस इस चीज़ को जो है ना ख़त्म करने का, तो युद्ध भी वैसा ही होगा। सब राजनीति है कुल मिला के, अगर देखो आप लोग, ठीक है। इसमें भक्ति भाव ये सब, ये तो एक तरीके से है, ठीक है, अपने जगह है। पर अभी कंपटीशन में कि अयोध्या से पहले इसको इनॉग्रेट कर, मंदिर का इनॉग्रेशन का। और ये मैं चीज़ बहुत बार बोल चुका हूँ लोगों को। एंड सिमिलरली मैंने फिर देखा कि चलो वो डेट तो गलत है,
एक बार यहाँ का जगन्नाथ जी जब मैं आया, पुरी इधर आया तो उड़ीसा में, तो इनका भी जो, तो इधर आने के बाद पता चला कि यहाँ भी कुछ इनॉग्रेशन हो रहा है मंदिर का एंड ऑल द तैयारी हो रहा है। तो इनका डेट है 17 जनवरी। तो ये भी देख लेता हूँ ये डेट कैसा है। एस्टॉनिशिंगली पता चला कि ये डेट भी गलत है, ठीक है। यहाँ का 17 जनवरी 2024 का डेट भी गलत है। तो आप सोचो, बैक टू बैक दो गलत डेट, दो इम्पोर्टेंट मंदिर का, एक का फर्स्ट इनॉग्रेशन, एक का री इनॉग्रेशन, ठीक है। दोनों में दो बार गलत डेट फाइनल हुआ है और गलत डेट पे इनॉग्रेशन हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई पंडित, कोई आदमी से नहीं पूछा गया हो, पर ऐसा भी हो सकता है कि अपने मनमानी में, अपने ज़िद में पॉलिटिशियन लोगों ने अपना डेट सेट कर दिया हो और उसी पे इसको रोल आउट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि सेंटर में 2024 का इलेक्शन है और स्टेट में आपको ऐसे यहाँ पे इलेक्शन एजेंडा और कैंपेन्स है अपना, जिनको अचीव करना है। तो ये लोग सिर्फ ये देख रहा है, पर फाइनली अगर मान लो अगर भगवान है कहीं पे, भगवान एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, और वो सब कंट्रोल करता है, उसके ऐसा इम्पोर्टेंट इवेंट्स का गलत डेट को सेलेक्ट होने का मतलब ये है कि भगवान खुद चाहता है कि चीज़ें गलत हो लोगों के साथ, इंडिया के साथ, भारत के साथ, ठीक है। तो और भगवान का सबसे अच्छा क्या है कि वो किसी भी चीज़ का ब्लेम नहीं लेता है, ठीक है। वो हाथ साफ करके निकल जाएगा, सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर डाल देगा। भाई तुमने गलत डेट पे पूजा किया, रिजल्ट गलत हुआ, तुमने गलत चीज़ खाया, बीमार पड़ गए, ठीक है ना, तुमने ये गलत किया है, तुमने अच्छा किया, तुम्हारा अच्छा हो गया, तो सब चीज़ तुम्हारे ऊपर डाल देंगे, ठीक है। तो गलती से भी आपने देखा होगा ना, कई लोग गलती से भी तुक्का मारता है, उनका सही चीज़ सही जगह लग जाता है और लाइफ में सक्सेस ये सब मिल जाता है। और कई लोग बहुत ट्राई करते हैं तब भी कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो ये सब चीज़ कैसे होता है, ठीक है। एक्सीडेंटली बाय फ्लूक तो होता नहीं है, ठीक है, कि गलती से सही चीज़ हो गया और कई लोग सही चीज़ करते करते भी गलत हो गया। तो ये सब डेस्टिनी है, ये सब प्लान्ड है, ये सब डिवाइन का चाल है, ठीक है ना। आप सब लोग डिवाइन को सिर्फ एक अच्छा गुडी बॉय के रूप में देखते हैं, पर मैं न्यूट्रल रूप में देखता हूँ, मैं उसके बैड साइड्स भी देखता हूँ और मैं उसका अच्छा साइड भी देखता हूँ। तो मेरे लिए डिवाइन कोई अच्छा आदमी नहीं है और मेरे लिए डिवाइन कोई बुरा आदमी भी नहीं है। डिवाइन बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक आदमी है, ठीक है, जो मौका परस्त है और मौका देख के आपको अपने हिसाब से फ़ायदा नुकसान करवाता है। पर आप लोग के अंदर उतना गट्स नहीं है कि आप लोग नेगेटिव साइड का जो है ना आकलन कर सके, उसको शॉर्ट एनालिसिस कर सके, बता सके। आप लोग आंखों में पट्टी बांध के सिर्फ पॉजिटिव साइड देखते हैं। तो ये दो गलत डेट्स जो फाइनलाइज हुआ है और इसका रेपरकशन इफेक्ट ये होगा, देखो पुरी में तो फिर भी 17 जनवरी उतना ख़राब है नहीं, ठीक है, क्योंकि पुरी का एनर्जी अलग है। पुरी वो गलत डेट को भी झेल सकता है, बट नेशन लेवल में अगर देखा जाए ना तो 17 जनवरी में पुरी का रीइनॉग्रेशन एंड 22 जनवरी को अयोध्या का जो है ना इनॉग्रेशन, ये दोनों इतना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगा 2024 में। ये मैं अभी बता दूंगा, वीडियो रहेगा रिकॉर्ड में, तो बाद में जब लगेगा तो आप लोग आके बताइएगा, हाँ सर आपने तो जनवरी में ही मंदिर इनॉग्रेशन होने से पहले बता दिया था और अभी चीज़ें ऐसा हो रहा है। जैसे अपना एक इस कॉन्फिडेंस में चला जाएगा ना कि 2-3 और कंट्री के साथ पंगा लेगा, ठीक है, और पंगा लेके किसी से भी पंगा लेने में तो अब काउंटर इफेक्ट तो होगा ही, तो वो इंडिया को झेलना पड़ेगा, इंडिया के लोगों को झेलना पड़ेगा और नेचुरल डिजास्टर्स में भी थोड़ा बढ़ेगा। अब मोस्टली नेचुरल डिजास्टर्स का जो टाइम होता है ना, वो या तो मानसून में होगा, ठीक है, या फिर समर्स में, ठीक है। ऑफ पीपल अफेक्ट हुआ, राइट, और ओवरऑल किसी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उससे। पर अगर ये चीज़ बहुत सारे स्टेट में होने लगे, ठीक है, हाँ कोविड तो कुछ महीने बाद भी हो सकता है, ठीक है,
पर बढ़ेगा तो पूरा रैम्पेज क्रिएट करेगा, जैसे कि 2020 या 2021 में क्रिएट किया था। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ भी आपको देखने को मिलेगा। क्राइम रेट्स काफ़ी ज़्यादा शूटअप होगा कंट्री में, ठीक है। मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद क्राइम रेट्स, और ख़ासतौर पे यूपी में हुआ है, तो आपको ज़्यादातर क्राइम्स आप देखेंगे यूपी और दिल्ली एनसीआर रीजन में ही सबसे ज़्यादा दिखेगा आपको, ठीक है। तरह तरह के क्राइम्स जो कि आपको सुनने में, सोचने में और न्यूज़ में देखने में भी आपको अजीब लगे, घटिया लगे और डाइजेस्ट ना कर सको, ऐसा क्राइम्स होगा, ठीक है। तो अब आप अब ये कौन बताए किसी को जाके कि यार 22 को अगर आप 23 जनवरी भी कर दो, 21 जनवरी भी कर दो, तो ये सब चीज़ें टल सकता है। पर लोगों ने अनाउंस कर दिया है कि 22 जनवरी को ही करना है, तो भाई करो। 22 जनवरी को आप लोग मंदिर इनॉग्रेशन करो और पूरा देशवासियों का जो है ना बेड़ा गर्क कर दो, ठीक है। तो ये आप लोगों का रहेगा, करो। अब उसमें क्या कह सकते हैं, पॉलिटिशियन लोगों का दुनिया है आजकल का, भगवान ही पॉलिटिशियन है। वो लोग गलत भी करे तो जैसे बॉस इज़ ऑलवेज राइट, उनको कोई कुछ बोल नहीं सकता। अब उनका जो है सो वही है, ठीक है। तो वही है, राइट। अभी कैसा आ रहा आवाज़, अभी ठीक है क्या? देखो आज भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें सुनने को मिला, देखने को मिला। बाकी आप लोग ने कितना समझा, वॉइस कट हुआ, ये सब चीज़ मुझे नहीं पता, ठीक है। पर इसी लाइव स्ट्रीम के चलते चलते चलिए आप लोगों को कम से कम क्या बोलते हैं पुरी का यहाँ पे दर्शन होने को मिल गया। आप लोग में से कितने लोग आ चुके हो यहाँ पे? कितने लोग पुरी में इस लाइफ टाइम में एक बार विजिट कर चुके, आ चुके हैं? कोई है? Anyone has visited पूरी in their lifetime कभी भी, या नहीं आया आज तक कभी भी? हालांकि कहा जाता है जगन्नाथ जी का आईलिड्स नहीं है, तो वो सोते नहीं है, वो हमेशा जागे रहते हैं। जब पब्लिक विजिटर्स का टाइम ख़त्म हो जाता है तो तो आओ भाई, आप लोग फैमिली वाले लोग हो, बच्चों को लेके आओ, हस्बैंड को लेके आओ, सास ससुर जो भी है उनको लेके आइए। स्वीट्स वगैरह का काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग स्वीट्स वगैरह का भी लेके जा सकते हैं। पर हाँ, पूरी अगर आ रहे हो तो सबसे मेन बात यह है ना कि अपना आप लोग को कैश लेके आना पड़ेगा अच्छा खासा, ठीक है। खर्चा बहुत होगा यहाँ पे, ठीक है। और बिना खर्चे का मंदिर का आपको एक फूल का पत्ता भी नहीं मिलेगा, ठीक है। पंडित से अगर आप बोलोगे ना, जैसे कोई भी मंदिर में आप जाओगे और आप बोलोगे कि पंडित जी थोड़ा तुलसी दे दीजिए, फूल दे दीजिए, और लोग दे भी देते हैं, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं है, आपको एक तुलसी का पत्ता भी चाहिए, पंडित बोलेगा 10 रुपये डालिए, 20 रुपये डालिए। ये तो मैं अपने हिसाब से बोला, वो लोग 50-100 रुपये से नीचे बातें नहीं करते, ठीक है ना। बोलेंगे यार जगन्नाथ आए हो, आप 50 रुपये नहीं डालोगे, 100 नहीं डालोगे, ऐसा, ठीक है। कोई भी टेंपल में आप अपने हाथ से भगवान को छू नहीं सकते। यहाँ पे चाहे शिव जी का टेंपल हो, आप जल का लोटा दीजिएगा क्या, आपके पास नाम लीजिए, ठीक है ना। आप 100-200 रुपये दीजिए, पंडित अपने हाथ से चढ़ाएगा, आपको छूने तक नहीं देता है। तो ये जो एक जातिवाद जैसा एक तरीका है ना यहाँ पे, ये काफ़ी टाइम से आप सोचो अभी के ये छुआछूत है ना कि, और सिर्फ मंदिर में पंडा लोग ही जो है ब्राह्मण कास्ट के लोग ही पूजा करेगा जाएगा, बाकी लोग ये अभी भी है, ठीक है। तो और मंदिर में पूजा वूजा का तो जहाँ तक बात है कि यहाँ पे कोई शिवलिंग हो या कोई भी देवी देवता का मूर्ति हो, तो आप उसको एट अ डिस्टेंस से ही आप उसको देख सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। तो आप सोचो आज से 1000-2000 साल पहले क्या हाल रहा होगा मंदिर का, ठीक है। तो ये एक डोमिनेंस है ऑफ सर्टेन क्लास एंड पीपल की पैसा दिन में कमाते हैं, उतना आपका हस्बैंड लोग महीने भर ऑफिस में रह के भी नहीं कमाते होंगे, ये उतना इनका दिन का कमाई,
ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा रिच टेंपल है पुरी उस हिसाब से, क्योंकि जगन्नाथ जी को डोनेशन भी अच्छा खासा जाता है और यहाँ का पंडा लोग भी अच्छा खासा कमाता है, क्योंकि हर चीज़ में मैं बोला ना कि पैसा है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मंदिर का प्रसाद खाना हो तब भी आपको कितना 100 रुपीज़ का महाप्रसाद मिलेगा, ठीक है। तो महाप्रसाद खाना है, 100 रुपीज़ का थाली मिलेगा आपको, वो खाइए। हाँ, खाने का एक्सपीरियंस बड़ा डिवाइन होगा, वो बात अलग है कि आपको जो अनुभव मिलेगा वो खाने के बाद जो आत्मा को शांति मिलेगा, ठीक है, वो आपको बाकी चीज़ खा के शायद नहीं मिलेगा, ठीक है। अलग ही है, उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है, वो बात है अपनी जगह। पर मोनेटाइजेशन है यहाँ पे, मतलब हर चीज़ का मोनेटाइजेशन है, ठीक है ना। तो वो सबसे नेगेटिव है। इसके अगेंस्ट में अगर आप वैष्णो देवी का बात करो, वो भी एक डिवाइन श्राइन टेम्पल है। तो वैष्णो देवी में ऐसा नहीं है, ठीक है। मंदिर में आप चढ़ावा चढ़ाइए, नहीं चढ़ाइए, कुछ भी कीजिए, आपका मर्जी है। और टेंपल में दर्शन करने के बाद हर भक्त को वहाँ पे टेंपल की तरफ से एक प्रसाद का पैकेट और एक सिल्वर कॉइन दिया जाता है, ठीक है। वो मंदिर के डोनेशन से ही आता है। और मंदिर वैष्णो देवी बहुत 24 घंटा वहाँ पे शायद लंगर भी चलती है। जिनको मंदिर से लंगर खाने का मन हो उनके लिए लंगर भी चलती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर उस उम्मीद में आएंगे कि यहाँ पे क्या बोलते हैं कि भगवान का दर्शन करने गए हैं और आप लोग फ्री का कुछ भी यहाँ पे मिल जाएगा ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पूरी में सब चीज़ का प्राइस देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे फ्री में कुछ भी आपको एक दाना तक नहीं मिलेगा। और अगर किसी ने आया है पास्ट में कुछ फ्री में मिला है तो मुझे बताइए, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मैं तो बहुत बार आया हूँ और मैंने एक्सपीरियंस में आज तक यहाँ पे फ्री में कुछ भी नहीं देखा है, ठीक है। तो ये है यहाँ पे। हाँ, ये हो सकता है कि आपको पंडा लोग में कोई जेन्युइन पंडा मिले, जैसे कि मान लो पूजा करवाने का फ़ीस अगर उसका 200-300 रुपये है तो उतना में करवा दे, पर ऐसा पंडा मिलना भी मुश्किल है। ज़्यादातर यहाँ पे आपको फ्रॉड पंडा ही मिलेगा। 100 में 99.5, ठीक है ना, 99.5% लोग आपको फ्रॉड ही मिलेगा पंडा लोग में। 0.5%, ठीक है ना, यदा कदा बचा हुआ अगर ऐसा आदमी से आप टकरा गए तो हो सकता है आपको आपका इमेज डिफरेंट हो, नहीं तो 99.5% कंप्लीट फ्रॉड, ठीक है। मंदिर में घुसते ही आपको फ्रॉडगिरी चालू हो जाएगा गेट से ही। यहाँ पैसा डालो, वहाँ पैसा डालो, इस चीज़ का पैसा, उस चीज़ का पैसा, ठीक है ना, हर चीज़ का यहाँ पे। तो एक रेट कार्ड है हर चीज़ का और हर साल बढ़ता है। तो आप लोग विज़िट कीजिए सब चीज़ें लाइफ में, ठीक है ना। पैसा बचा के, पैसा ठूस के कहाँ ले जाइएगा, ठीक है, कोई मतलब है नहीं। और कोई शौक़ है तो वो शौक़ बिल्कुल पूरा कीजिए, ठीक है। और नहीं है कोई शौक़ और ऐसा है तो ऐसा जगह आइए कम से कम, क्योंकि ये जगह का जो ऑरा होता है, जो एनर्जी होता है, वो आपको यहाँ से चले जाने के बाद भी काफ़ी टाइम तक पकड़ के रखता है, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एनर्जी रहता है यहाँ पे। तो यहाँ आने के बाद तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा, क्योंकि ये देखिए आप लोगों का जो एक इनोसेंट ब्रेन क्या बोलता है ना, कि टेंपल है ये, ठीक है। बट अगर माइन्यूटली अगर आप देखो तो ये एक एनर्जी बॉडी है, एक एनर्जी फील्ड टेंपल, ठीक है। पर सिर्फ जगन्नाथ जी का इसी टेंपल में भीड़ क्यों लगता है, बाकी में क्यों नहीं लगता, ठीक है। बात यही है कि यहाँ पे आपका वो एनर्जी फील्ड है, ठीक है ना, जो बाकी जगह नहीं है, इसीलिए भीड़ यहीं पे लगती है, ठीक है। तो मंदिर होना कोई बड़ी बात है नहीं इंडिया में, तो ठीक है ना, हर कोने में मंदिर मिल जाएगा। पर जगन्नाथ जी जैसा टेंपल आपको हर जगह नहीं मिलेगा, इवन पुरी में भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। पुरी में आपको पूरा शहर में टेंपल ही टेंपल मिलेगा, पर यहाँ का बात ही अलग है। वाई? बिकॉज इनका जो रिप्रेजेंटेशन है। और पुरी में क्या है ना कि आपको सारे गॉड गॉडेसेस का आपको एक टेंपल, एक जगह मिलेगा, एंड दे हियर गॉड एंड गॉडेसेस आर ट्रीटेड एज अलाइव, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि जगन्नाथ जी खाने पीने का बहुत शौकीन है, दिन में 4-5 बार वो खा लेते हैं। तो साल में इतना खाने के बाद ना वो इतना बीमार पड़ जाते हैं तो उनको पेट ख़राब होने का और बुखार लगने का दवा भी खिलाया जाता है, ठीक है।
हाजमोला वाजमोला ये सब घीस के खिलाना पड़ता है कि भैया आपने बहुत खा लिया, गैस हो गया होगा। तो ये सब चीज़ भी यहाँ चलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ का यूनिक फीचर्स, है ना। मैं अगर उस हिसाब से खेलूँ तो चलिए, अच्छा रहा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। आप लोगों ने देख लिया, दर्शन कर लिया। इस तरफ लाइट का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो आपको जगन्नाथ जी का वो वाला व्यू नहीं दिख रहा है जो कि दिख सकता है। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊं वो दूसरे कैमरा से एक बार ट्राई करता हूँ, ठीक है ना। इससे उतना शायद अच्छा नहीं आ रहा है, मैं दूसरा कैमरा से एक बार ट्राई करता हूँ। चलो, जय जगन्नाथ।